Good morning, kids. I hope all of you are doing well. And today we are moving ahead with one more poem, and this poem is from our Bal Bharti only. Okay, so you can also find the text in the PDF of Bal Bharti that I've sent on the group. Okay, so let's move ahead. Be ready with your learning cabs and your pens and notebooks. Great. So the name of our poem is In Time of Silver Rain. Silver rain के समय में. Okay. Now quickly, your do now is you have to think and write why is the poet calling it silver rain. Okay. You can think how I have told you to understand metaphors. Okay. Why is the poet calling it silver rain? वो silver rain क्यों बोल रहा है? Okay. Great. Now, our next most important thing is our objective. So, today we have mixed objective, which means we have more than one objective. Okay, let's read what it is. We will be able to give our own explanation to the poem and identify the different figures of speech. Okay, so first objective is हम इस कविता को इस पॉम को अपना एक्सप्लेनेशन देंगे लाइक दीदी विल गिव वन एक्सप्लेनेशन द वेरी बेसिक एक्सप्लेनेशन एंड देन वी all the students we will think what other explanation can the poem have. बच्चा एक पोएम का सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन नहीं होता. इट कैन हैव मैनी एक्सप्लेनेशंस, मैनी पर्सपेक्टिव्स, मैनी अंडरस्टैंडिंग्स. ओके, and second part of our objective is we will identify the different figures of speech. So we have read many figures of speech. If you remember, we have done alliteration, hyperbole, metaphor, simile, and now we will use some of these figure of speeches. We will identify, we will not use, we will identify them from the text. Okay, write the objective before we move ahead. Great. How will we answer? So if this is our objective, the question is कि ये तो confusing है, हम answer कैसे करेंगे? Answer is, first we will understand Didi's explanation and answer the questions that follow. First, I will give you one explanation. You will try to understand it and answer the questions that follow that explanation. Second, we will identify different figures of speech. Okay. Third, we will give our own explanation. So this is step by step how we will be answering today. Great. Okay, now bacha, before starting, I want to share the best thing about poetry or reading a poem. Okay, so the best thing is no understanding is wrong understanding when you read a poem. You can perceive it in your own way. मतलब दीदी ने आपको एक मतलब समझा दिया पोम का, ठीक है. अब इसका मतलब ये नहीं कि उसका सिर्फ वही मतलब है. व्हेन यू आर रीडिंग अ पोम, उसका कोई एक पर्टिकुलर मतलब नहीं होता है. आप उसको अपने तरीके से समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम सेइंग कि द रूम हैज़ ब्लू कर्टन्स, ओके, तो इसका तो एक ये मतलब है कि रूम में ब्लू कर्टन्स है. एंड ऑल्सो ब्लू सिग्निफाइज सैडनेस, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि रूम में जो लोग हैं उनके लिए बहुत सैड सा माहौल है. तो बेसिकली बोथ द अंडरस्टैंडिंग्स आर करेक्ट. इट कुड हैव इवन थर्ड एक्सप्लेनेशन. आपकी कुछ अंडरस्टैंडिंग हो सकती है. तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ पोम कि जो आप समझना चाहें आप वो समझ सकते हैं. आप अपने तरीके से परसीव कर सकते हैं. व्हाट द पोएट और पोएटिस मीन इज़ नॉट द ओनली एक्सप्लेनेशन टू दैट पोम. अभी ये नहीं कि जो जिसने पोम लिखा है जो उनका एक्सप्लेनेशन है वो ओनली एक्सप्लेनेशन है. नो, दिस इज़ नॉट लाइक दैट. भौमी दीदी कैन हैव वन एक्सप्लेनेशन, मितेश कैन हैव वन एक्सप्लेनेशन, आर्या कैन हैव वन एक्सप्लेनेशन, शिवम कैन हैव वन एक्सप्लेनेशन. हर किसी का अपना एक्सप्लेनेशन हो सकता है. सो यू कैन हैव योर ओन एक्सप्लेनेशन. ओके, दिस इज़ द ब्यूटी एंड दिस इज़ वॉट वी आर गोइंग टू डू टुडे. वील फाइंड आवर ओन एक्सप्लेनेशन. ओके, great, bacha. So let's move ahead with the poem. I will read it first. In time of silver rain, the earth puts forth new life again. Green grasses grow and flowers lift their heads. And over all the plain, the wonder spreads of life, of life, of life. So now, what is the poet saying?
द पोएट इज सेइंग इन टाइम ऑफ सिल्वर रेन. अभी आपको मैंने सोचने बोला है why the poet is calling it silver rain. It was your do now, so I'm assuming you have done it. So, but the silver rain, why? Because first, silver is precious. Second, the color of rain is, little bit like silver. थोड़ा सा वो वाला शेड आता है और छोटे छोटे ऐसे बारिश की बूंदें गिरती है. So the poet is calling it silver rain. Okay. Now he is saying when it rains, the earth puts forth new life again. Puts forth मतलब आगे रखना. अर्थ में नई लाइफ आ जाती है. सारी तरफ ग्रीन ग्रास उग जाती है. फ्लावर्स लिफ्ट देयर हेड्स. जो फ्लावर्स मुरझा जाते हैं गर्मी में वो फिर से अपने हेड, बेसिकली फ्लावर्स ऐसे सीधे हो जाते हैं. ऑल ओवर द प्लेन द वंडर स्प्रेड्स ऑफ लाइफ. मतलब जो सब चीज़ें मुरझा रही है, घास नहीं उग रही है, बहुत गर्मी है, काफ़ी समय से बारिश नहीं हुई है, बारिश के होते ही लगता है सब जगह लाइफ आ गई है. The grass grows, the flowers lift their heads, and everywhere it's green. Okay, so therefore the poet is saying it feels like कि हर जगह life आ गई है. The earth put forth new life again. फिर से एक नई जिंदगी मिल चुकी है अर्थ में. Okay. Now बच्चा, when you do, write the full poem together. Okay, पहले इतना पार्ट लिख लीजिए, नीचे थोड़ी जगह छोड़िए, write the full poem together. And of course, you will also annotate. Please don't forget to annotate, okay? Let's quickly answer to see whether we have understood or not. Why did the poet say that rain puts forth new life? Poet ऐसा क्यों बोल रहा है कि बारिश के आने से नई लाइफ आ जाती है? Personification is when we give characters of living things to non-living things. So we have done this figure of speech personification, which means जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को किसी लिविंग थिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स दे देते हैं. लाइक द विंड इज सिंगिंग. अभी सिंग तो लिविंग थिंग करता है, बट वी आर सेइंग द विंड इज सिंगिंग. तो हम क्या कर रहे हैं? पर्सोनिफिकेशन. हम विंड का पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं. सो नाउ यू हैव टू फाइंड पर्सोनिफिकेशन इन दिस पोम. ये वाले पार्ट में कहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हो रहा है, यू हैव टू फाइंड. ओके. एलिट्रेशन इज व्हेन नेबरिंग वर्ड्स स्टार्ट विथ सेम अल्फाबेट. ओके. जब भी नेबरिंग वर्ड्स मतलब बगल बगल के शब्द सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन. लाइक इन आवर एग्जाम्पल वी सी नीता नीड्स न्यू नोटबुक. एवरीथिंग इज स्टार्टिंग विद एन. एन से स्टार्ट हो रहा है ना, एन 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 एन. दिस इज कॉल्ड एलिट्रेशन. यू हैव टू फाइंड एलिट्रेशन फ्रॉम द टेक्स्ट दैट वी हैव रेड टिल नाउ. ओके. If you have any confusion regarding personification or alliteration, you can go back to the video that I have already made. Okay, bacha, pause the video, write these answers. Great, let's move ahead to the second part quickly. In time of silver rain, the butterflies lift silken wings to catch a rainbow cry, and trees put forth new leaves to sing. Enjoy beneath the sky as down the roadway passing boys and girls go singing too. In time of silver rain when spring and life are new. Okay, now what is happening? The poet is saying कि silver rain के time में butterflies lift silken wings. Butterflies के wings are very soft and silky ना. So they are saying कि butterfly अपने wings उठाती है to catch the rainbow cry. बेसिकली कभी कभी रेनबो भी आता है एंड इट्स ऑल्सो रेनिंग, तो इट फील्स लाइक द रेनबो इज क्राइंग एंड द बटरफ्लाइज वो रेनबो के पास जाती हैं. ट्रीज पुट फॉर्थ न्यू लीव्स टू सिंग. ट्रीज न्यू लीव्स को आगे करता है टू सिंग. अभी नाउ इफ यू लुक केयरफुली, दिस इज ऑल्सो पर्सोनिफिकेशन. लीव्स डोंट सिंग, बट द पोएट इज सेइंग दैट लीव्स सिंग मीन्स बहुत खुशी से झूमती हैं. पेड़ों में नए पत्ते आ जाते हैं बिकॉज बारिश हो गई, अब सबको पानी मिल चुका है. Enjoy beneath the sky as down the roadway passing boys and girls go singing too. Joy beneath. Beneath मतलब बच्चा नीचे. ओके, स्काई के नीचे पूरे सड़क पे बच्चे घूम रहे हैं, वो लोग भी गाना गाते हुए घूम रहे हैं. तो जब बच्चा काफ़ी टाइम बाद बारिश होती है तो कितना मज़ा आता है ना, सब जने सड़कों पे निकलते हैं, कुछ लोग नहाते भी हैं बारिश में. सो बेसिकली दिस इज़ द सिनेरियो दैट द पोएट इज़ ट्राइंग टू क्रिएट in our heads. Okay, the boys and girls are singing, the leaves are singing.
in time of silver rain when spring and life are new. Okay, understood? It's the story of when it rains, in the time of silver rain when spring and life are new. सब कुछ नया होता है, लाइफ नहीं होती है. So we are talking about that time. Now बच्चा pause the video, write the full poem and annotate. ठीक है, annotate करना मत भूलिए. Great. Shall we move ahead with question answers? Okay. Find personification from the poem. So I've already helped you, but you might find more personification. Just try to look. You have to find personification. Do you think everyone is enjoying the rain? Do you enjoy the rain? Why? क्या सबको मज़ा आ रहा है बारिश के आने से? Second question is कि आपको भी अच्छा लगता है बारिश का आना? क्यों? Is the poet talking about heavy rains in the rainy season or rain that has come after a long time? Why do you think so? Now you have to sit and think कि क्या पोएट उस बारिश की बात करते हैं जो बहुत बारिश, जैसे आजकल बॉम्बे में हो रही है कि जब रेनी सीजन में बहुत बारिश आ जाती है, या फिर उस बारिश की बात कर रहे हैं जो काफ़ी टाइम बाद आई है? यू हैव टू ऑल्सो राइट वाई डू यू थिंक सो. जो भी आपका आंसर है उसका रीज़न भी लिखना है. Whether you think it's a heavy rain in rainfall, why do you think so? Whether you think it's a rain that has come after a long time, why do you think so? Okay, now fourth question, which is fun question. You have to draw landscape on the basis of this poem. What elements will you show? What colors will you use? So basically फोर्थ वाले में आपको ड्रॉ करना है. ओके, व्हेन यू आर रीडिंग द पोम तो आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगा ना, ऐसे खेत आ रहे होंगे, ऐसी सड़क आ रही होगी, बारिश आ रही होगी. तो बेसिकली यू हैव टू ड्रॉ दैट. आपके दिमाग में जो भी चल रहा है यू हैव टू ड्रॉ दैट एंड यू कैन put your own elements. You can use any colors. Okay, I'm not saying the sky has to be blue. Your sky can be yellow, your sky can be pink, your sky can be black. The grass, I'm not saying the grass has to be green. If you want, you can make your grass, you can color your grass with red color, anything. So basically this is your own landscape. जो भी आपके दिमाग में beautiful लग रहा है वो आपको draw करना है. Okay, so pause the video, do this. Great. Now you have understood Didi's explanation. Okay, I have made you, I have told you my explanation कि मैं इस poem से क्या समझती हूँ. It's very basic कि मैं rain को rain ही समझ रही हूँ and I am not thinking it as a metaphor कि ये कुछ और हो सकता है. मैं rain को rain समझ रही हूँ. rain के आने से सब जगह new life आ जाती है, सब जने खुश हो जाते हैं. Basic explanation. Okay. Now it's time to give your own explanation to the poem. My explanation is very simple, which calls rain as rain only. You compare rain to something else. अभी दीदी का explanation सुन लिया है, अभी आपको अपना explanation देना है. ठीक है, अब मेरा बहुत सिंपल है. मैंने rain को rain समझा है, आपको rain को किसी और चीज़ से compare करना है. फॉर एग्जाम्पल मैंने आई गिव यू एन एग्जाम्पल ना बच्चा. द पोएट इज़ राइटिंग देयर आर ब्लू कर्टन इन द रूम. सो सिंपल एक्सप्लेनेशन इज़ कि रूम में ब्लू कर्टन्स है, ब्लू पर्दे हैं. पर अगर तुम डीपली सोचो तो ब्लू कलर सिग्निफाइज सैडनेस. तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि रूम में बहुत सैडनेस है. ओके, सो बेसिकली दिस इज़ हाउ आई कंपेयर्ड. नाउ ऑफकोर्स द क्वेश्चन इज़ हाउ टू डू इट. अभी अचानक से हम कैसे रेन को किसी से कंपेयर कर लें. सो डोंट वरी, आई हैव पुट डाउन द स्टेप्स फॉर यू. हाउ विल यू कंपेयर? ओके बच्चा, बेसिक कंपैरिजन के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड माई एक्सप्लेनेशन. ठीक है, जो मैंने एक्सप्लेन किया है, जो उसका लिटरल मतलब है वो आप समझिए. देन वॉट यू विल डू, नंबर 1, सी वॉट रेन इज डूइंग. रेन क्या कर रही है. थिंक वॉट अदर थिंग्स कैन डू सिमिलर थिंग्स. ओके, रेन क्या कर रही है इसमें. रेन इज प्रोवाइडिंग हैप्पीनेस, rain is providing new life, rain is making people sing. So basically this is what rain is doing. Now you have to think कि ऐसी और क्या चीज़ है जो same thing करती है. Okay. Second is see what feelings rain is creating. Think what else can create this feeling in people. अभी पहले आपने देखा कि रेन का एक्शन क्या है, फिर आपको देखना है कि रेन क्या फीलिंग क्रिएट कर रही है. क्या वो लोगों को खुश कर रही है, दुखी कर रही है, गुस्सा दिला रही है.
एंड देन यू हैव टू थिंक ऐसी क्या चीज़ है जो हमें सेम फील कराती है. Third is, see the nature of the rain. Think what else can have such nature. Now, bacha, when I say nature, I mean, for example, rain has particular season. Rain क्या क्या करती है? Rain का nature कैसा है? Rain चीज़ों को गीला कर देती है. रेन हर जगह आती है, कहीं बस कुछ जगहों को छोड़ के सब जगह बारिश होती है. सो बेसिकली ये नेचर आपको देखना है. तो व्हाट 3 थिंग्स यू हैव टू सी? एक्शन, फीलिंग एंड नेचर. एंड देन यू हैव टू फाइंड दैट वन थिंग जो ये तीनों चीज़ें रेन की तरह सिमिलर करती है. ओके, somebody, maybe somebody in your life who brings happiness like rain. Okay, maybe it could be a person, a place, a thing, anything you want it to be. Remember बच्चा, it is your own explanation. आप जिससे भी कंपेयर करना चाहते हैं आप कंपेयर कर सकते हैं. ओके, इट कुड बी एनी थिंग. इट कुड इवन बी अ स्पोर्ट. अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है आप एक स्पोर्ट से भी कंपेयर कर सकते हैं, किसी चीज़ से, इंसान से, जानवर से, एनी थिंग. इट इज़ योर ओन एक्सप्लेनेशन. सो टेक योर पेन्स इन योर हैंड्स. आई नो इट विल टेक सम टाइम. ओके, मैं ये नहीं बोली बहुत जल्दी करिए. इट विल टेक सम टाइम. थिंक एंड देन गिव योर ओन एक्सप्लेनेशन. ओके, great. Now I will tell you one secret to write a good poem. Okay, the special arrangement of short lines makes you think about every detail. If you write this sentence in the usual manner, it does not have the same effect. जब हम छोटी छोटी लाइन, जब हम एक लाइन को ब्रेक करके एक पॉम को छोटी छोटी लाइन में लिख देते हैं ना, इट मेक्स अस थिंक डीपली. वो हमें और डीपली थिंक कर पाता है. फॉर एग्जाम्पल, the first stanza would be something like, the earth puts forth new life again, green grasses grow and flowers lift their heads, and wonder of life spreads all over the plain in time of silver rain. तो देखिए, बेसिकली ये एक लाइन था जो कि इतना प्लेन था, पर पोएट ने इसको ऐसे तोड़ तोड़ के लिखा है that it is making us think कि ये डिटेल के बारे में हमें सोचने को पुश कर रहा है. सो दिस इज़ अ सीक्रेट ऑफ राइटिंग अ गुड पोम. How to do it? Write 5-6 sentences about something beautiful using your own experience or imagination. अपना एक्सपीरियंस और इमेजिनेशन, आप उसके बारे में कैसा सोचते हैं, यूज़ करिए और किसी भी एक चीज़ के बारे में 5-6 लाइन्स लिखिए. देन रीअरेंज द वर्ड्स इन द सेंटेंसेस इन अ पोएटिक फॉर्म. जैसे आप फर्स्ट पैराग्राफ देखिए फिर से, जैसे पोएट ने सिंपल लाइन को कैसे तोड़ तोड़ के रीअरेंज किया है ना, वैसे ही जो आपने लाइंस लिखी है ना अबाउट समथिंग ब्यूटिफुल, आप भी उसको तोड़ तोड़ के एक पॉम की तरह लिखिए. यू मे राइट. अब हेयर आर फ्यू आइडियाज़. ओके, ज़रूरी नहीं आप इनके बारे में लिखिए, कुछ आइडियाज़ हैं. यू कैन राइट अबाउट अ ब्यूटिफुल डे, अ ब्यूटिफुल नाइट, अ स्ट्रीम, अ क्रॉप स्टैंडिंग इन अ फील्ड, अ ग्रेसफुल बर्ड, एनिमल, एट्सेट्रा. सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स, दैट फ्यू आइडियाज़ दैट यू कैन टेक हेल्प ऑफ. ज़रूरी नहीं है इन्हीं के बारे में लिखिए, आपकी खुद की पोएम है, आपको खुद लिखनी है. कैसे लिखेंगे? 5-6, पहले पोएम नहीं, पहले नॉर्मल पैराग्राफ में 5-6 लाइन्स लिख लीजिए. देन उनको पोएटिक फॉर्म में अरेंज करिए जैसे पोएट ने किया है. ओके, नाउ व्हाट विल बी माई रिवॉर्ड? अगर आप बहुत अच्छी पोएम लिखते हैं तो आपको कुछ रिवॉर्ड भी तो मिलना चाहिए ना. सो आई हैव अ रिवॉर्ड फॉर यू ऑल. इफ़ यू राइट अ वेरी नाइस पोएम, Didi will choose the best poem written by one of you and lesson plan on it and teach it to all. तो बेसिकली जैसे मैंने ये पोम सबको पढ़ाई है, वैसे ही जो भी आप सब में से जिसकी भी बेस्ट पोएम होगी मैं वो चूज़ करूँगी, उसके लिए पीपीटी बनाऊँगी, लेसन प्लान करूँगी और वो पोएम मैं सबको पढ़ाऊँगी. ओके, सो दिस विल बी योर रिवॉर्ड. नाउ टेक योर पेन्स, टेक योर टाइम, आराम से अपना समय लीजिए and write a beautiful poem. Okay, if you get confused about use of new adjectives, you can take help from Google. You can also take help from me कि दीदी इसको हम और क्या बोल सकते हैं. ओके, अगर कोई चीज़ गुड है उसके लिए हम और क्या क्या वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं. यू कैन रीच आउट टू मी एज वेल. ओके बच्चा, तो डिड यू अंडरस्टैंड? इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. ओके, you can just ask me on WhatsApp.
And I'm really looking forward to all the poems that you write today because I will be choosing one and teaching it. Great? Okay, happy learning, everybody. I will see you in the next class.